this nucleophilic substitution, two reactions which are actually halogen exchange reactions. You can write first one, Finkelstein reaction. So name reaction popular by the name of the scientist who discovered that. So Finkelstein reaction is a halogen exchange method. It is actually a halogen exchange reaction in which haloalkanes are basically chloro और bromo alkanes. ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स में से क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स को आप आयोडो एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हो बाय ट्रीटिंग देम विद KI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. एसीटोन के साथ हीट करना है एल्काइल हैलाइड्स को. KI एक्चुअली रिएक्टेंट इज KI, एसीटोन इज यूज्ड एज अ मीडियम. एसीटोन में जो सॉल्युबिलिटी है HCl is more soluble in acetone as compared to KI, तो वो easily separate out हो जाता है. So that is the reason acetone is used. Otherwise, the reaction is alkyl halides, basically chlorides or bromides. They can be treated with KI in the presence of acetone to form iodoalkanes. So this method is used actually to prepare iodoalkanes. Next, second reaction is Schwartz reaction. Schwartz reaction is also a kind of halogen exchange. कि आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेलोजन एटम को एक कार्बन चेन से सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो किसी और एल्काइल हेलोजन एटम्स के थ्रू. तो यहाँ पर हम बेसिकली फ्लोराइड्स फॉर्म करेंगे. एल्काइल फ्लोराइड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग chloro or bromo alkanes with actually either some transition metal fluorides or maybe p block elements के जो halides है जैसे antimony fluoride यूज कर सकते हैं. बट बुक्स में आपको रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ मिलेगी. तो हियर RCl plus AgF. AgF is a transition metal halide. नेम सिल्वर फ्लोराइड. AgF के साथ ट्रीट करवाने पे आपको RF plus AgC. AgCl is formed as a precipitate here and it gets separated out and are obtained. So chloroalkanes can be prepared by treating chloro or bromo alkanes with silver halide or mercurous halide Hg2F2 से भी बन जाता है. तो ये ट्रांजिशन मेटल p ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हैलाइड्स हैं इनके साथ रिएक्ट करवाते हैं जनरली एंड द रिएक्शन इज नेम्ड एज Schwartz रिएक्शन इन द ऑनर ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. यू कैन से ठीक है Finkelstein and Schwartz reaction. These reactions are given in preparation methods in book but actually preparation methods are deleted now. तो मैंने ये रिएक्शन इसलिए करवा दी है कि नेम रिएक्शन से पॉपुलर है. if this can be asked क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है एक तरह का. So after this, कुछ questions हैं NCERT में on the basis of that कि which compound is more reactive in SN1 or SN2 reactions. So you can note down that also.
suppose these four compounds are there, hydrogen atoms are not written, you can write that later. So if these four hydrogen alkyl halides are given and it is asked to arrange them in increasing order of reactivity either in SN1 or SN2, right now I am discussing about SN2. SN2 reactions में इनकी order of reactivity क्या होगी, उसके बेस पे अगर आपको इनको अरेंज करना है तो first of all you need to consider in SN2 reaction transition state is formed in which halogen atom is leaving and nucleophile is attacking from opposite direction. तो ये ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल तभी होगी जब जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो कार्बन लीस्ट हिंडर्ड होगा, मतलब उसके अराउंड क्राउडिंग नहीं होगी एटम्स की, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स अगर साथ में नहीं होंगे देन दैट रिएक्शन विल बी SN2 रिएक्शन विल बी इजियर. तो इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो मिथाइल है. अगर मिथाइल नहीं है क्वेश्चन में तो आप देखो चेन लेंथ में कार्बन के एटम जिसमें सबसे कम होंगे दैट विल बी मोस्ट रिएक्टिव. बट हियर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 सब में सेम है, तो इस केस में आपने ब्रांचिंग देखनी है कि सबसे कम क्राउडिंग कहाँ, तो वो 1 डिग्री कार्बन लीस्ट क्राउडेड होता है, 3 डिग्री कार्बन मोस्ट क्राउडेड होता है. तो आपने उस कार्बन के एनवायरमेंट को चेक करना है जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस एट दिस कार्बन ओनली, बाकी कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं है. तो इस कार्बन की हमने इसका जो एनवायरमेंट है दैट वी नीड टू चेक वेदर इट इज more crowded or not. If it is more crowded then it will be less reactive towards SN2. तो यहाँ पर देखो इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन. इस केस में देखो इसके साथ एक कार्बन ये भी है और ये भी है, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन which is further more crowded from this one. And थर्ड केस में देखो आप ये कार्बन ये मतलब जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है दैट कार्बन इज फर्दर bonded with 3 more carbon atoms. That means it is a 3 degree carbon. Yeah. And last वाला जो है हमारे पास ये 1 डिग्री कार्बन. ठीक है, अब आपको मैंने अभी बताया कि 1 डिग्री will be most reactive followed by 2 डिग्री then finally 3 डिग्री जो alkyl halides हैं they are least reactive toward SN2. तो आपको increasing order of reactivity में लिखना है इनको. तो first one will be this. ये हो गया आपका जो ये वाला कंपाउंड है थर्ड वन, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव फॉलोड बाय द सेकंड वन. अभी मैं यहाँ सिर्फ नंबर से लिख रही हूँ. एंड अब आपके पास ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है. अब 1 डिग्री में कैसे हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा? कैन एनीवन टेल which out of these 1 degree alkyl halides, first and last option, which one will be more reactive towards SN2? Yes, can anyone tell? थर्ड वन जो हमारा 3 डिग्री है लीस्ट रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव. अब 1 डिग्री में जिस कार्बन पे अटैक होना है उस कार्बन के आसपास भीड़ भाड़ तो नहीं है, बस ये देख लो. अगर ज्यादा भीड़ लगी हुई है एटम्स की तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल को वहां तक पहुंचने में ही टाइम लग जाएगा, रिएक्शन रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी. तो यहाँ देखो इस कार्बन के पास एक ही कार्बन है, ज्यादा भीड़ नहीं है. हियर दिस 1 डिग्री कार्बन बट इट हैज अ ब्रांच्ड कार्बन हियर, एडजेसेंट कार्बन पे ब्रांच है. तो अगेन दो बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए साथ वाले कार्बन पे. तो ब्रांचिंग जो है वो क्राउडिंग को इंक्रीज करता है. अब वो सेम कार्बन पे ब्रांचिंग है तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी ज्यादा कम होगी, बट इफ द ब्रांचिंग इज प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन देन आल्सो इट कैन कॉज हिंड्रेंस, बट कंपैरेटिवली लेसर हिंड्रेंस होगी इनके कंपैरेटिवली. तो नाउ थर्ड वन जो कंपाउंड है वो उसकी रिएक्टिविटी इन दोनों से ज्यादा है, बट इट इज लेस रिएक्टिव देन फर्स्ट. फर्स्ट वाला जो मोस्ट रिएक्टिव है बिकॉज उस पर एडजेसेंट कार्बन पे भी कोई ब्रांच नहीं है. तो अब ये देखो अगर ब्रांचिंग हो रही है चेन में, फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू कंपेयर दीस कंपाउंड्स,
सपोज ये 5 कार्बन वाले सारे एल्काइल हैलाइड्स हैं। अब इसमें फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इस कार्बन पे जिसपे अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल अटैक, इसके साथ सिर्फ एक ही ये ग्रुप है, बाकी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन बनाते हैं तो हाइड्रोजन बीइंग स्मॉलर एटम्स इट इज लीस्ट हिंडर्ड। अब इसमें भी यहाँ 2 हाइड्रोजन है, बट एडजेसेंट कार्बन के पास फिर एक बड़ा ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप। हियर ये मेन कार्बन जिस पर अटैक होना है, इसका एक कार्बन पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, बट थर्ड कार्बन पे फिर हिंड्रेंस आ गई और इसमें सेकंड कार्बन पे ही बहुत ज्यादा क्राउडेड है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव होगा दैट विल बी वन, फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ। तो इसमें जो लीस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी फोर्थ। इसके बाद रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब यहाँ से हम देखते हैं इसमें फिर ये सेकंड वाला आ जाएगा, देन थर्ड वन एंड उसके बाद फर्स्ट। तो फर्स्ट वन विल बी मोस्ट रिएक्टिव व्हिच डजंट हैव एनी ब्रांच इन द एंटायर, पूरा स्ट्रेट चेन नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बाद आप ब्रांचिंग देखो कहाँ पे, जितना दूर जाते जाओगे उस कार्बन से ब्रांचिंग जितनी दूर चली जाएगी उतना वो मोर रिएक्टिव होगा, हिंड्रेंस कम आएगी। बट जितना उस मेन कार्बन जिस पे रिएक्शन होनी है उस कार्बन के पास वाले कार्बन पे अगर क्राउडिंग ज्यादा है तो दैट विल कॉज मोर हिंड्रेंस। मींस ब्रांचिंग चेक करो, जितना पास है उसके ब्रांचिंग उतनी हिंड्रेंस ज्यादा है, जितना ब्रांचिंग दूर जा रही है मतलब हिंड्रेंस कम होती जाएगी। क्लियर? और अगर सेम ही कार्बन की ब्रांचिंग है तो वो 2 डिग्री 3 डिग्री आपने चेक करना है, जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतनी ज्यादा हिंड्रेंस, जितनी क्लोज ब्रांचेस उतनी ज्यादा हिंड्रेंस। ठीक है, तो स्टेरिकली हिंडर्ड मॉलिक्यूल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 क्योंकि वो फिर कार्बोकेटाइन बना के रिएक्शन करते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन नहीं करते, तो उनकी फिर रिएक्टिविटी SN1 में इसका सेम रिवर्स कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट सपोज इफ इट इज आस्क्ड टू mention arrange the molecules in order of reactivity if they are written like this. Means carbon chain is same. अभी मैंने मिथाइल ग्रुप लिखा है, any chain it may be, but halogens different है. Then if it is asked to arrange them in increasing order of reactivity towards either SN1 or SN2, दोनों के लिए ही आपको ये ग्रुप को कंसिडर करना है, चेन को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आपको उस केस में अगर इनमें कंपेयर करवा रहे हैं तो चेन सेम ही देंगे, अदरवाइज तो फिर अगर चेन में डिफरेंस है तो दैट थिंग आल्सो मैटर्स, बट दो फैक्टर्स नहीं करेंगे वेरी, ओनली वन फैक्टर वेरीज व्हेन अरेंजमेंट इज आस्क्ड इन केस ऑफ रिएक्टिविटी। सो यू नीड टू कंसीडर जितना लार्जर साइज का हेलोजन होगा, बॉन्ड लेंथ CX बॉन्ड लेंथ जो है वो जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड वीकर होता है। ठीक है, तो आयोडाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज आयोडाइड जो आयोडीन का साइज है एटम का वेरी लार्ज एज कंपेयर टू फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, तो लार्ज एटम्स लॉन्गर बॉन्ड लेंथ इजियर टू ब्रेक, तो इनको हम कहते हैं कि जितना बड़ा हेलोजन होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में वो उतना बेटर लीविंग ग्रुप होता है। तो बेटर द लिविंग ग्रुप easier is the reaction or more is the reactivity. So less reactive or least reactive here will be CH3F followed by CH3Cl followed by CH3Br and last one most reactive is CH3 iodide. Means iodides will be most reactive out of or among all halogens. Means the order reactivity increases with increase in size of halogen atom. So these kind of questions are asked many times in exams. Arrange these particular compounds in order of reactivity of SN1 or SN2. Next is elimination reaction. First, मैंने आपको बोला था बेटा haloalkanes show reactions which can be classified into 3 types. Nucleophilic substitution reactions, वो हम कर चुके complete. Second is elimination reaction and third है reaction with metals. So right now I'm discussing elimination.
elimination is also known as dehydrohalogenation in case of alkyl halides. Otherwise elimination तो बहुत टाइप की है. In case of monohalogen derivatives of alkanes, मतलब जिनको हम मोनोहेलो एल्केन्स कह रहे हैं, जिनमें एक हेलोजन लगा हुआ है, उनमें जो एलिमिनेशन है वो dehydrohalogenation है. Dehydrohalogenation means ये alkyl halide है suppose, this is a halogen atom और एक हाइड्रोजन एटम भी साथ में एलिमिनेट होगा. डीहाइड्रोहेलो, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन का एलिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ HX मॉलिक्यूल. हेलो एसिड की फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा एंड लिविंग बिहाइंड वन एल्कीन. तो एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय dehydrohalogenation reactions of haloalkanes. रिएक्शन इस कैटेगरी मेन जो है वो एलिमिनेशन है. अब एलिमिनेशन के अंदर फर्दर बहुत टाइप्स होती हैं, तो वो टाइप्स अभी आपको यहाँ कंसीडर नहीं करना है. दीज काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस आर dehydrohalogenation, और इसके लिए एक और मेन की है बीटा एलिमिनेशन. This reaction you have already done in class 11th also in preparation of alkenes. ठीक है. अब सपोज करो कि आपको अभी मैंने ये जो केस बताया, इसमें देखो ये जो पोजीशन है दिस इज अल्फा. जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है उस कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, एंड उसके एडजेसेंट कार्बन जो है वो बीटा कार्बन होते हैं. तो दिस इज आल्सो बीटा कार्बन, दिस इज आल्सो बीटा कार्बन. अब इन दोनों बीटा कार्बन में से कहीं से भी हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो सकता है. ठीक है. अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है? तो उसके लिए रूल है which is known as Saxon rule. Saxon rule क्या कहता है? अगर आपके पास ऐसा एल्कीन है जिसमें हेलोजन के दोनों साइड पे बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो आपको वो एल्कीन बनाना है जो आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो. फॉर एग्जांपल here this carbon has two beta carbon. ये अल्फा हुआ हमारा, ये पोजीशन बीटा, ये बीटा. आपके पास इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इस कार्बन के पास हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, we have 3 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है. अब आपको बीटा एलिमिनेशन करवाना, मतलब X तो यही है जो रिमूव हो जाएगा, ये तो अलग हो ही जाएगा. ठीक है. यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक होगा ही. अब दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास कि ये H भी रिमूव हो सकता है, ये H भी रिमूव हो सकता है. तो हमें कौन सा करवाना रिमूव? एट ए टाइम तो हम एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज दोनों बनते हैं, बट हम मेजर प्रोडक्ट्स ही मेंशन करते हैं रिएक्शंस में. सो व्हाट यू नीड टू कंसीडर हियर इज Saxon rule. ठीक है. व्हाट डज दिस रूल सजेस्ट? इफ two or more types of alkenes are formed by dehydrohalogenation, then more substituted alkenes are the major product. मेजर प्रोडक्ट कौन से होंगे? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होंगे. मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बना सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. मतलब ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, और अगर हम ये हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं देन वी गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH. तो इन दोनों में से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए. तो यहाँ डबल बॉन्ड के एक ही तरफ लॉन्ग चेन है, इस तरफ कार्बन ही, बट हियर डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों ही फर्दर और एल्काइल मिथाइल ग्रुप्स के साथ अटैच है. ठीक है. तो दिस इज अ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज कंपेयर टू दिस. सीधा सा सिंपल सा एक फंडा याद रखो आप कि आपने वो हाइड्रोजन रिमूव करना है जिस कार्बन के पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, वो ही अपने हाइड्रोजन रिलीज करेगा. मींस ये कार्बन देखो, इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है,
This carbon has 3 hydrogen. So you need to remove hydrogen from that carbon which is already having lesser hydrogen number. तो इसके पास जिसके पास कम है उसके हाइड्रोजन हटा दो. So this more substituted alkene is formed named as butene और ये हमारा है but1. ये जनरली 18 to 19% बनेगा. ये आपका बनेगा 78 to 79%. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 81 to 82%. मतलब 80% के अप्रोक्सीमेट ये 20 के आसपास वो बनता है. बट हम मेंशन करते हैं हमेशा मेजर प्रोडक्ट. तो 80% जो बन रहा है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हिच इज इन अकॉर्डेंस विद सेक्सेफ रूल. ठीक है, व्हाट डज दिस रूल सजेस्ट? व्हेन two, or if you want to write definition of Setzeff's rule, you can write if halogen atom is present, if halogen atom is present at non-terminal positions in carbon chain, at a non-terminal position in carbon chain. Non-terminal मतलब बीच में किसी कार्बन पे लगा है, फर्स्ट या लास्ट पे नहीं है. Non-terminal position in a carbon chain, then beta elimination will take place. Beta elimination will take place in that direction where more substituted alkene is formed. In the direction where more substituted alkene is formed. In other words, hydrogen will be eliminated from that carbon. Hydrogen will be eliminated from that carbon which already has lesser number of carbon, which already has lesser number of carbon atoms. रिएक्शन क्या है इसमें? आपने सॉरी मैंने अभी रिएक्टेंट लिखा नहीं था, आप लिख लेना अल्कोहलिक KOH इसके साथ हीट करना है. If you have written the reaction, dehydrohalogenation क्या है? When alkyl halides are heated with alcoholic KOH, then alkenes are formed by removal of or by elimination of HX molecule. So this reaction is used in preparation of alkenes. So now I am asking one question. I am giving you one alkene, one haloalkane. Mention the product formed when this compound chlorine is treated with alcoholic KOH. Alcoholic KOH के साथ अगर आप हीट कर रहे हैं इस कंपाउंड को, what will be the major product formed here? Can anyone tell? If we can write this in this way, you can understand it better. You have two carbon which have hydrogen atom. सबसे पहले तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है. अगर ऐसा एक बीटा कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो उस पे जबरदस्ती एलिमिनेशन मत करवाना. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी ये CH3 ग्रुप है तो इस पूरे बीटा कार्बन एक ये है आपके पास और एक ये. ठीक है, दोनों बीटा कार्बन में से अगर एक ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं, यहाँ पर देखो ये मिथाइल ग्रुप ये मिथाइल ये मिथाइल, तो दिस कार्बन विल नॉट हेल्प इन एलिमिनेशन रिएक्शन. यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं एलिमिनेट करने के, अब उसमें आपको जबरदस्ती CH3 हटा के डबल बॉन्ड नहीं बनाना.
ये as it is रहेगा, हाइड्रोजन will be eliminated from this side, तो डबल बॉन्ड यहाँ है. But if suppose you have one hydrogen atom here, one hydrogen atom here, मतलब दोनों बीटा पोजीशंस में आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, then apply Zaitsev rule that उस कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट करवाओगे जिस पे कम हाइड्रोजन है. So here this carbon has 3 hydrogen atoms, it has only 1. So you have to remove this HCl molecule from here and आपने बनाना है CH3, C. बाकी का मॉलिक्यूल ऐसे ही छोड़ दो, बस ये जो बॉन्ड टूटेंगे यहाँ से, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा. तो बॉन्ड ब्रेक होने से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक एक फ्री रह गया. Those two electrons will form a double bond here. तो ये pi bond बन गया यहाँ बीच में and CH CH2. ठीक है, तो this is 2-methyl but2-ene is the product obtained. आपको but1-ene2 वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो माइनर रहेगा. ठीक है, तो this is what elimination reaction is. Means when alkyl halides are heated with alcoholic KOH at somewhat higher temperature, then elimination reactions take place, removing you can say one hydrogen atom from beta carbon and one halogen atom. ठीक है, to proceed or to yield alkenes. ओके, अब ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि KOH या NaOH के साथ जब हम एक्वस मीडियम में रिएक्शंस करवाते हैं हेलोजन अल्काइल हैलाइड्स की, then nucleophilic substitution takes place and alcohols are the product form. वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हेलोजन को OH आयन से. ठीक है, which is a nucleophile. अब जब हम अल्कोहलिक मीडियम में KOH को रख रहे हैं तब सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा? ओनली एलिमिनेशन टेक्स प्लेस. रीजन इज दैट अल्कोहलिक मीडियम में जब आप NaOH या KOH को रिएक्ट करवाते हो इस रिएक्शन में, देन व्हाट हैपेंस? अल्कोहल जनरली हम यूज कर रहे हैं C2H5OH. दिस इज कॉमनली यूज्ड अल्कोहल इन दिस रिएक्शन. इथेनॉल पहले KOH या NaOH के साथ रिएक्ट हो जाता है and it gives C2H5OA plus H2O. ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है and this is सोडियम और पोटेशियम इथॉक्साइड. ये इथॉक्साइड जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है, मतलब ये OC2H5 आयन रिलीज करते हैं. जैसे OH आयन होता है हाइड्रोक्साइड बेसिस, ये इथॉक्साइड आयंस OH आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड में से, these are very strong bases. और ये स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड पर जाकर इस कार्बन पर अटैक नहीं करते जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रादर वो उसके एडजेसेंट कार्बन में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते. एक बेस क्या होता है, वो कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है. तो इट विल रेडिली help to remove this hydrogen because it is acting as a stronger base as compared to OH ion. OH ion एक better nucleophile है, but ethoxide ion is a stronger base and it helps to remove hydrogen from the alkenes as compared to कि वो जाके substitute करें इस X को, they rather extract out या उसमें से खींच लेते हैं हाइड्रोजन को अपनी तरफ जो बीटा हाइड्रोजन. ठीक है, तो that is why elimination is preferred over substitution when temperature is higher. ये higher temperature पर ही होगी, less रखोगे तो elimination होने के chances कम होते हैं. ठीक है, और alcohol की presence जरूरी है. Alcoholic KOH medium में better और stronger bases are formed that help in elimination reactions. ठीक है, तो this is the reason behind this. अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी में एलिमिनेशन में बस एक ही है रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन ही आपको सिलेबस में, बाकी कोई एलिमिनेशन नहीं. थर्ड कैटेगरी रिएक्शन विद मेटल्स. इसमें से भी बेटा एक रिएक्शन आपने 11th में किया हुआ है, दैट इज वोल्ट्स रिएक्शन. In Wurtz reaction, when alkyl halides are treated with sodium in the presence of ether,
ड्यू टू द वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड जो प्रोडक्ट यहाँ पर एक्चुअली एल्केन्स बन रहे हैं वो भी मतलब थोड़ा सा लाइक एक्वस मीडियम से प्रिवेंट करने के लिए, हम मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए रिएक्शन को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं. तो हियर व्हाट हैपेंस, one more molecule of RH you need to write, makes two molecules of alkyl halide react with two atoms of sodium metal in the presence of dry ether to get, ये देखो इस तरह से sodium halide salt will be eliminated out and both of these R groups will combine together to give you alkane. Okay, so this reaction you have already done in class 11 where we can prepare alkanes having even number of atoms using Wurtz reaction. Okay, it's a very important and very common reaction in chemistry where alkanes are formed by alkyl halides. उसमें आप डबल नंबर, और ये रिएक्शन जब आप कन्वर्जन्स करोगे, कन्वर्जन्स में स्टेप अप रिएक्शंस होती हैं, मतलब आपको रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे डबल कार्बन चाहिए प्रोडक्ट में, देन यू हैव टू गो फॉर वुड्स रिएक्शन. ठीक है, मतलब इसी रिएक्शन से आपको डबल कार्बन आप कर सकते हो. और अभी आगे जब हम हेलोएरीन्स की रिएक्शंस करेंगे तो अगर आप एक हेलोएरीन ले रहे हो और एक हेलो एल्केन ले रहे हो, सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो यू कैन हैव सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आल्सो. टॉलुएन बना सकते हो, इथाइल बेंजीन बना सकते हो, मतलब टू अल्काइल एंड एराइल वो दोनों ग्रुप्स पे हम कंबाइन कर सकते हैं by using this reaction where the reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. Fittig भी साइंटिस्ट का नेम है क्योंकि उसने हेलोएरीन्स पे रिएक्शन करवाई थी और वुड्स ने एल्काइल हैलाइड्स पे करवाई थी. तो दोनों को कंबाइन करके हम Wurtz-Fittig reaction, that will come in that हेलोएरीन टॉपिक. तो ये रिएक्शन क्या है? When alkyl halides are treated with sodium metal in the presence of dry ether, then higher alkanes are obtained. Okay, और एक और रिएक्शन है मेटल्स के साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर अदर चैप्टर्स आल्सो. उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है. रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर ये सेकंड वन, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल. अब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं? ट्राई in the presence of again dry ether and it's a very important compound form which is known as Grignard reagent. Victor Grignard was the scientist who first prepared this compound, and in the honor of that scientist, the name of this compound or this class of compound, actually class इसलिए कह रही हूँ क्योंकि R group वेरी कर सकता है, X भी कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो variety of compounds can be there in this class, and the group of these compounds is known as Grignard reagents in the honor of the scientist Victor Grignard. और उसको फिर 1912 around I think Nobel Prize भी मिला था for this discovery because this is a very important organic compound. Actually organic compound metal के साथ है, तो इस class of compounds को हम कहते हैं organometallic compound. तो these organometallic compounds are of very important use क्योंकि polar polarity बहुत ज़्यादा है. Magnesium is highly electronegative positive metal, तो उसकी प्रेजेंस होने की वजह से कंपाउंड में पोलैरिटी बहुत आ जाती है. ठीक है, तो these compounds are used to prepare further important organic compounds like alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acid. बहुत सारे compounds हम इससे बना सकते हैं. वो आगे हर एक चैप्टर में आपको preparation methods में मिलेगा how this Grignard reagent is used. तो ये कॉमन फॉर्मूला है RMgX. एक एग्जांपल आप देखो CH3MgCl. This is also an example of Grignard reagent. सबको एक कॉमन नेम दे दिया Grignard reagent. ठीक है, तो इसके आगे अब चैप्टर हेलोएरीन्स का है. अब इसमें भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज नेसेसरी ओवर देयर. तो these Grignard reagents are very much reactive towards moisture.
मॉइस्चर की प्रेजेंस भी है, ट्रेसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी अगर प्रेजेंट है तो दे रिएक्ट विद दैट एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स। तो इन हमने एल्केन्स नहीं बनाने ना, हमें तो एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड बनाने। हेंस मॉइस्चर इज प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द मीडियम ऑफ ड्राई मीडियम विद ईथर। ओके, तो विल स्टार्ट विद येलो एरिंग्स टुमारो। बेटा अगर अभी अटेंडेंस फिल नहीं की है तो चैट बॉक्स में आई हैव सेंड द लिंक फॉर गूगल फॉर्म, अगेन आई एम सेंडिंग। So those who have still not filled, they can fill it. Others can leave. हाँ जी, हाँ, उनका फोन आ रहा था बट मैंने उठाया नहीं।